آغاز میں آپ کو بتائیں، متحدہ کے مطالبات پر کراچی کی سیاست میں ہلچل مچ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے ایم کیو ایم سے ملاقات کی معذرت کر لی ہے۔ دونوں اہم اتحادیوں میں آج ہونے والی ملاقات منسوخ کر دی گئی ہے۔ لیگی رہنما محمد زبیر کا کہنا ہے کہ سردار ایاز صادق وزیر اعظم کو ایم کیو ایم ملاقات سے متعلق بریفنگ دیں گے، جس کے بعد متحدہ سے بات چیت کی جائے گی۔ ادھر متحدہ کا وفد آج لیگی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ملاقات کرے گا۔ پی ایس پی نے ورکرز کا ہنگامی اجلاس آج شام طلب کر لیا ہے۔ اس وقت تفصیلات جان لیتے ہیں، نمائندہ نیونیوز خورشید رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خورشید، اس وقت کراچی کی سیاست میں کیا ہلچل مچ گئی ہے؟ جی، کراچی کی سیاست میں بڑی ہلچل اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کی جو مطالبات ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کراچی کی سیاست میں یہ ایک وہ گرما گرمی سامنے آئی ہے۔ 2 روز قبل بھی جو ہے بلاول ہاؤس میں ہونے والی ملاقات بھی جو بے نتیجہ ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وفد ہے وہ بھی ملاقات کی خواہش مند ہے، لیکن اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے ایم کیو ایم کا وفد جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ادارے نورحق میں پہنچے گا اور وہاں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیب الرحمان سے ملاقات کرے گا۔ آج جو مسلم لیگ نون سے ملاقات ہونی تھی، اس حوالے سے ہماری ملاقات جو بات ہوئی ہے وہ ترجمان مریم نواز اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر سے ہماری بات ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے آج سردار ایاز صادق وزیر اعظم پاکستان کو بریفنگ دیں گے۔ اس کے بعد ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی جو ملاقات ہے اس کا امکان ہے۔ اس کے حوالے سے جو تحفظات ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن سے قبل جو ہے وہ مردم شماری کروائی جائے اور جو شہری علاقوں کے جو مسائل ہیں اس کو فی الفور جو ہے وہ حل کیا جائے۔ ووٹر لسٹوں کے حوالے سے بھی ایم کیو ایم پاکستان کا صاف واضح موقف ہے کہ وہ بھی دوبارہ جو ہے اس کی تشکیل کی جائے، ووٹر لسٹوں کو دوبارہ ٹھیک کیا جائے۔ اس پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ارکان سے ہماری جو بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ فی الفور ووٹر لسٹوں کو اور حلقہ بندیوں کو کی تشکیل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اس پر جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جو ووٹر لسٹیں اور مردم شماری نئی مردم شماری کی بات جو ہے وہ عام انتخابات میں حصہ لیا جائے گا۔ اس کے وجہ سے پاک سرزمین پارٹی نے بھی آج جو ہے وہ ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل بھی جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی ہاؤس کے اندر جو ہے وہ اہم جو ہے وہ مرکزی سطح پر جو ہے وہ اس کا اجلاس کیا جا رہا ہے۔ آج جو ہے شام 7 بجے پاکستان ہاؤس میں جو مستوی کمل کی صدارت میں جنرل ورکرز اجلاس ہوگا۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اب آئندہ سیاسی لائحہ عمل کیا ہوگا، ایم کیو ایم کے ساتھ مشاورت ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ جی آج شام 7 بجے کے بعد سید مصطفیٰ کمال اس بات کا اعلان کریں گے کارکنان سے مشاورت کے بعد۔ جی ٹھیک ہے خورشید، بہت شکریہ آپ کا۔ جماعت اسلامی کا کل وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا دینے کا اعلان۔ کراچی میں 3 مرتبہ بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو چکے ہیں۔ شہر کے حق پر شب خون مارا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ اس وقت شہر بدترین حالات سے دوچار ہے۔ الیکشن کا وقت قریب آتے ہی سازش شروع ہو گئی ہے۔ حلقہ بندیوں کو جواز بنا کر الیکشن سے فرار چاہتے ہیں۔ جان بوجھ کر تمام معاملات کو خراب رکھا گیا۔ 15 جنوری کو الیکشن کا ہونا لازمی ہے۔ میری پارٹی میں ہی چلاؤں گا۔ عمران خان نے پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی کارروائی کے خلاف الیکشن کمیشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے پارٹی عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طور پر نوٹس جاری کیا۔ درخواست میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ لاہور اور مضافاتی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز شیخو پورہ سے 20 کلومیٹر دور تھا۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ لاہور اور اس کے مضافات میں زلزلے کے جھٹکے شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ زلزلے کا مرکز شیخو پورہ سے 20 کلومیٹر دور تھا۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ لاہور اور اس کے مضافاتی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کا مرکز شیخو پورہ سے 20 کلومیٹر دور تھا۔ لاہور، شیخو پورہ اور اس کے گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی ملک میں مہنگائی کا اعتراف کر لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حکومت سنبھالی اس وقت ملک کی معاشی حالت انتہائی ابتر تھی۔ پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے خود ہمت کرنا ہوگی۔ سیلاب کا چیلنج حکومت کے لیے بہت بڑا تھا۔ اپنی زندگی میں اتنا بڑا سیلاب نہیں دیکھا۔ وزیراعظم نے صوبت پور میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول کلی جیا خان کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کر دیا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई का एतराफ़। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाके सोबतपुर के दौरे में कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि मुल्क में महंगाई उरूज पर है। ताहम उन्होंने महंगाई का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया। हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी आज से 9 महीने पहले, तो इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से हमारा मुआहदा टूट चुका था, दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी और हुकूमत की बदतरीन नाअहली की बिना पर गैस, हम सस्ती तरीन गैस हम न खरीद सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में 12 दानिश स्कूल बनाने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में पहला दानिश स्कूल सोबतपुर में बनेगा। वो 23 मार्च को दानिश स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। ये सोबतपुर का स्कूल दानिश स्कूल के हमपल्ला होगा, बल्कि वज़ीर आला बलूचिस्तान और गवर्नर की मशावरत से पूरे बलूचिस्तान में 12 स्कूल और बनाएंगे दानिश इंशाअल्लाह, और वही सहूलतें होंगी जो दानिश स्कूलों पंजाब में हैं। जलसे से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सैलाब का चैलेंज हुकूमत के लिए बहुत बड़ा था। अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा सैलाब नहीं देखा। 9 जनवरी को जनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी डोनर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आटे और गंदम का वफाकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च तारिक बशीर चीमा ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि फ्लोर मिल्स मसनूई कीमतों में इजाफा करती है। सिंध ने गंदम की सपोर्ट प्राइस 4000 मुकर्रर की है। सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने से पहले किसान की लागत को देखा जाता है। 4000 सपोर्ट प्राइस पर मजदूर आटा कैसे खरीदेगा? उन्होंने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की जिस दिन मुलाकात हो जाएगी उस दिन गंदम की कीमत पर मसला हल हो जाएगा। इस साल पंजाब हुकूमत ने प्रोक्योर सपोर्ट प्राइस जो है वो फिक्स की हुई है 3000 रुपए पे। KP के गवर्नमेंट ने 3000 रुपए पे की हुई है, बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने 3000 रुपए पे की हुई है। आई डोंट नो क्या रीजंस थी, क्या वजूहात थी कि सिंध हुकूमत ने वो कीमत जो है वो 4000 रुपये मुकर्रर कर दी। अगर आप इंटरनेशनली उस कीमतों को बराबर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ वो हालात नहीं है। सर्द मौसम में लाहौर का सियासी पारा हाई है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही 11 जनवरी से कबल हर सूरत एतमाद का वोट लें, इमरान खान ने हिदायत दे दी है। पार्टी रहनुमाओं स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तैन खान, उस्मान बुज़दार, मियाँ इस्लाम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद और दीगर को अहम जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। 9 जनवरी के असम्बली इजलास में अरकान से राब्ते मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। एतमाद के वोट के बाद पार्टी फैसले के मुताबिक आइंदा इक़दामात होंगे। मरीम नवाज ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा संभाल लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मरीम नवाज का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। पार्टी की तंजीमी नौ पर मुशावरत की गई है। मरकजी तंजीम में फौरी बुनियादी तब्दीलियाँ न लाने और नए चेहरों को तंजीमी जिम्मेदारियाँ देने पर इत्तेफाक हुआ। नवाज शरीफ की वतन वापसी में ताख़ीर की सूरत में मरीम नवाज इंतखाबी मुहिम की सरबराह होंगी। फवाद चौधरी का हुकूमत पर इलेक्शन के लिए तंज। कहा, इलेक्शन के नाम ज़ियाउल हक के बाल खड़े हो जाते थे जिससे बाल काटने में आसानी हो जाती थी। यही हाल अब मौजूदा हुक्मरानों का है। वो बड़ा मशहूर वाक़या था कि जनरल ज़ियाउल हक के बाल जब नाई काटने आता था तो वो कहता थी इलेक्शन कब कराएंगे। तो उसको एक दिन एजेंसियों ने उठा लिया, उन्होंने कहा ये तुम बार बार क्यों पूछते हो। उसने कहा जी जब मैं जनरल साहब से पूछता हूँ इनके बाल खड़े हो जाते हैं, इलेक्शन के नाम पर काटने में आसानी हो जाती है। इस हुकूमत का भी इस वक्त इलेक्शनों से यही हाल बना हुआ है कि पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बेबुनियाद और फ़िज़ूल इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के ज़रिए आलमी बरादरी को गुमराह करने में मसरूफ़ है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का नया बयान पाकिस्तान को तनहा करने में भारत की नाकामी और बढ़ती हुई मायूसी का इकास है। भारत का मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत की दहशतगर्दी में मुलव्विस होने को छुपा नहीं सकता। दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय भारत खुद दहशतगर्दी, तख़रीबकारी और पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी का सिलसिला बंद करे। दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा करना पाकिस्तान का हक है। अवाम ने दहशतगर्द हमलों में शदीद नुकसान उठाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेट प्राइस कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। यकीनी बनाना चाहते हैं कि दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की ज़मीन ना इस्तेमाल कर सकें।
अमरीका पाकिस्तान के हक में बोल पड़ा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की भरपूर मजम्मत की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने वाशिंगटन DC में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी से बचाव के लिए दिफा का मुकम्मल हक रखता है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दी से बेतहाशा नुकसान उठाया है। अमरीकी तर्जुमान का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के हालिया कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद जारी बयान से बाखबर है। अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तालिबान अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे। उनका कहना था कि तालिबान खवातीन, लड़कियों और आम लोगों को बार बार निशाना बना रहे हैं। क्रिसमस से कबल खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली NGOs पर भी पाबंदी लगा दी गई। डायरेक्टर हेडक्वार्टर DGHS पंजाब डॉक्टर सुहेल अरशद राना की ज़ेर सदारत कोविड टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ है। इजलास में बताया गया है कि पाकिस्तान में अब तक नए वेरिएंट का कोई एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। ओमिक्रॉन वेरिएंट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। नया वेरिएंट बासानी काबिल तशख़ीस और काबिल इलाज है। दस्तियाब वैक्सीन दीगर तमाम वेरिएंट्स की तरह इस नए वेरिएंट के खिलाफ भी यकसा मौसर और कारगर है। इजलास में प्रोफेसर ब्रिगेडियर वहीदुज़्ज़मान, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हयात, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्टर जमशेद, हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर सईद और दीगर नामवर तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की। बढ़ती महंगाई ने चिकन को किचन से दूर कर दिया है। ब्रायलर मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब आवाम के लिए प्रोटीन का सस्ता जरिया भी महंगा हो गया। रावलपिंडी में 1 किलो गोश्त 555 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। कीमतों में मुसलसल इजाफे से हर कोई परेशान है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ खालिद चौधरी। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा जो है शहरियों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है और आए रोज़ जो है कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। आज अगर मंडी और बाहर मार्केट के रेट की बात करें तो 555 रुपये में मुर्गी का गोश्त दस्तयाब है और हर कोई इस चीज़ से परेशान है क्योंकि ये कीमत जो है आए रोज़ बढ़ रही है। इसमें कोई ठहराव नहीं है, जिसकी बिना पर हर कोई परेशान है। घरेलू सार्फिन हो या बाहर के लोग हों, हर किसी को मुश्किल का सामना है। आज जो 555 रुपये जिंदा मुर्गी का गोश्त दस्तयाब है, इस पर जो है मुख्तलिफ जो बात हुई है लोगों से, उनका कहना है कि जो पोल्ट्री सनत जो है वो मुश्किलात का शिकार है, जिसकी बिना पर जो है कीमतों में ठहराव नहीं रहा और रोज़ बरोज़ मुर्गी के गोश्त और इसकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। जी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तवानाई बचाओ मुहिम के तहत वफाकी हुकूमत की मार्केटें रात 8:30 बजे और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां इस्लाम इकबाल कहते हैं कि हम ये मामला काबीना में लेकर जाएंगे। वफाकी हुकूमत को इससे मुश्तरका मफादात काउंसिल में लाना चाहिए था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने कोई मशवरा नहीं किया। वफाकी हुकूमत की इस पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं कर रहे। बाजार और मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने पर ताजरों का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वफाकी हुकूमत का फैसला मुआशी कत्ल करार दे दिया। कहते हैं कि महंगाई से पहले ही सूरत हाल परेशान कुन है। कारोबार जल्द बंद करने से मसाइल बढ़ जाएंगे। अगर होटल्स और मार्केट शाम को बंद हो जाएंगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि दुकानदार इसके पैसे काटेंगे लेबर में से। जब उसकी दिहाड़ी कम लगेगी, वो पहली महंगाई है, वो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, खाने पीने के पैसे भी और कम होंगे, तो मेरे ख्याल से ये मुआशरे में और अफरा तफरी की तरफ ही जाएंगे। दिन को लोड शेडिंग कर लें तो बिजली की बचत करनी है, दिन को वो हो जाएगी लोड शेडिंग करने, कारोबारी तबाह होगा, मशीन अगी तबाही हुई है। ये फैसला हम नहीं मानते। बेहतर तो है कि लोगों को काम करने देना चाहिए क्योंकि माशी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं लोगों के लिए, तो लोगों को टाइम ज़्यादा देना चाहिए रोज़गार के लिए ताकि ज़्यादा काम करके अपने हालात चला सकें। इनको चाहिए अपने अखराजात कम करें, अपनी बिजली को बचाएं जो ये ज़ाया करते हैं। आवाम तो 2 बल्ब जलाती है, उसमें क्या बिजली ज़ाया होगी। लोगों को टाइम मार्केटें खुलती हैं, कोई कस्टमर ही नहीं आता। जब कस्टमर आने लगता है तो वो ये कहते हैं कि मार्केटें बंद करो। रात कोई कस्टमर आता है, रात कोई काम होता है। गवर्नमेंट तो इसी वजह से आई सी कि हम महंगाई कम करेंगे, लोगों को सहूलियात देंगे, वो तो कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने तो उल्टा आवाम के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई इलाकों और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है, जबकि मुल्क के बाकी हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में रहे। सुबह के वक्त मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार रहा। कराची में भी सर्द हवाएं चलने लगीं।
मुल्क के तूलो अर्ज में शदीद सर्दी का राज, कराची भी ठंडी हवाओं की लपेट में। शहर कायद की रातें सर्द हो गईं। मुल्क के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान के बाज़ अजला में शदीद सर्दी की लहर जारी है। आज कम से कम दर्जा हरारत लेह में -17, स्कर्दू में -12 और अस्तौर में -11 रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत कालाम, किलात, कोयटा और गिलगित समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे रहा। सुबह के औकात में पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने की पेशगोई की है। बरतानिया के निज़ाम तालीम में तब्दीली का फैसला किया गया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने 18 साल तक के बच्चों के लिए रियाजी मजमून को लाजमी करार देने का फैसला कर लिया है। ऋषि सुनाक ने कहा है कि रियाजी को निसाब में लाजमी करार देने का मकसद बच्चों के सोचने, समझने और तख्लीकी काम करने की सलाहियतों को परवान चढ़ाना है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।